یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے وقت کی، یہ بات ہے انسان کی حقیقت کی۔ کون ہے جو وقت کو روک سکتا ہے؟ کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے سورۃ العصر کی۔ مدرسوں میں اکثر یہ سورت صرف یاد کرائی جاتی ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ العصر اصل میں کیا ہے، کیوں اللہ نے وقت کی قسم کھائی۔ امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان صرف سورۃ العصر پر غور کر لے تو یہی اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اگر لوگ اس سورت کو سمجھ لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ وہ زمانہ تھا جب لوگ غفلت میں تھے، لوگ دنیا میں ایسے کھو چکے تھے کہ انہیں اپنے رب کی یاد ہی نہیں رہی تھی۔ کسی کو دولت کا غرور تھا، سب یہی سمجھتے تھے کہ وقت بہت ہے۔ حالانکہ سب نقصان میں تھے۔ اللہ نے حق کا پیغام نازل فرمایا، اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں آخرت سے ڈراتے ہیں۔ قریش اس پیغام کو سن کر مذاق اڑانے لگے تھے۔ ہمیں کس بات کا نقصان ہو سکتا ہے؟ انہیں اپنی طاقت اور دولت کا بہت غرور تھا۔ تب سورۃ العصر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت خاموشی سے گزر جاتا ہے مگر انسان محسوس نہیں کرتا۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور انسان بدل جاتا ہے۔ مال دوبارہ مل سکتا ہے مگر وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ انسان کی صحت واپس آ سکتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ وقت ایک بار چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا۔ آج انسان اپنا زیادہ وقت غفلت میں گزار رہا ہے۔ ہم ساری زندگی دوڑتے کیوں رہتے ہیں؟ انسان سکون تلاش کرتا ہے مگر دنیا میں ہی کھو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولت بھی اور عزت بھی۔ قریش اپنی خوشحالی میں کھو چکے تھے۔ اتنی محنت کے بعد بھی دل کو سکون نہیں ملتا۔ انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے مگر اندر سے خالی رہ جاتا ہے۔ آخر انسان کو سکون کہاں ملتا ہے؟ جب دل اپنے رب سے دور ہو جائے تو دنیا بھی خالی لگنے لگتی ہے۔ ہر دن پہلے جیسا ہی لگتا ہے مگر انسان کی زندگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہتی ہے۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہر انسان نقصان میں نہیں ہے۔ کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابھی زندہ ہوتے ہیں۔ کیا واقعی ابھی بھی واپسی ممکن ہے؟ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بس انسان کو واپس پلٹنا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی بھر دنیا کو پکڑے رکھا مگر سکون صرف اپنے رب کے قریب آ کر ملا۔ یہ کلام دل کے اندر اترتا جا رہا ہے۔ ایمان انسان کے اندر سب کچھ بدل دیتا ہے۔ شاید یہی اصل سکون ہے۔ ایمان صرف دل میں نہیں ہوتا
वो इंसान के अमल में भी नजर आता है। हम एक दूसरे को भूलते जा रहे थे। हक सिर्फ जानने की चीख नहीं, बल्कि एक दूसरे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी है। हक के रास्ते पर चलना आसान नहीं। सच्चाई हमेशा आजमाइश मांगती है और हर ईमान वाले को एक दिन सब्र सीखना पड़ता है। शायद यही वो जगह है जहां सुकून मिलता है। जब इंसान थक जाता है तो उसे अपने रब की तरफ लौटना याद आता है। तुम सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जिंदगी रुकती नहीं, लेकिन इंसान अक्सर खुद को भूल जाता है। क्या वाकई वक्त को समझ पाए हैं? वक्त हर किसी के साथ चलता है, लेकिन हर कोई वक्त के साथ नहीं चल पाता। अंधेरों में भी रास्ता मिल सकता है। जब इंसान रुक कर सोचता है तो उसे रोशनी दिखाई देने लगती है। ये आवाज मुझे अंदर से जगा देती है। कभी कभी एक आवाज इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। यही वो जगह है जहां दिल को सुकून मिलता है। इंसान जब झुकना सीख लेता है तो वो हकीकत में जीना सीख लेता है। क्या सिर्फ सोचने से कुछ बदल सकता है? नहीं, जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती। फिर इंसान को करना क्या चाहिए? ईमान सिर्फ एक एहसास नहीं होता, ये एक फैसला होता है। मैंने बहुत देर तक भागते रहने में जिंदगी गुजार दी, मगर असल सुकून रुकने में नहीं, समझने में है। अगर जिंदगी इतनी मुख्तसर है तो हम इतना भटक क्यों रहे हैं? सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, और वो लोग जो नेक अमल करते हैं, यानी वो जो अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, और वो एक दूसरे को हक की नसीहत करते हैं, यानी सच को छुपाते नहीं बल्कि उसे आगे पहुंचाते हैं। और वो एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते हैं, यानी मुश्किल वक्त में भी इस्तकामत नहीं छोड़ते। और वो एक दूसरे को सब्र की नसीहत करते हैं, यानी मुश्किल वक्त में भी इस्तकामत नहीं छोड़ते। ये आयात सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए हैं, क्योंकि असल तब्दीली इंसान के अंदर से शुरू होती है। सिर्फ बातें काफी नहीं होते। ईमान जब अमल में ढलता है तब वो हकीकत बनता है। अगर मैंने सच ना कहा तो फिर कौन कहेगा? हक सिर्फ जानने की चीज नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। ये यहाँ क्यों रुका हुआ है? मैं नहीं रुका, मैं बस बर्दाश्त कर रहा हूँ। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, ये टूट कर भी ना गिरने का हौसला है। कभी कभी दिल खुद से भी लड़ रहा होता है। इंसान की सबसे बड़ी जंग उसके अपने अंदर होती है। शायद मैं बहुत देर तक सोया रहा। जब इंसान जागता है तो सिर्फ आंखें नहीं खुलते, दिल भी बदलने लगता है। ये आवाज मेरे दिल को छू रही है। हक जब दिल तक पहुंचता है तो इंसान बदलने लगता है। मैं अब वैसा नहीं रहना चाहता। जब इंसान सच को समझ लेता है तो उसकी सिम्मत बदल जाती है। मैं क्या करूं? हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा आता है जहां उसे इंतखाब करना होता है। अगर मैंने ये सच बोल दिया तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम तैयार हो या नहीं? ये वो लम्हा होता है जहां इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है। आखिर सब कुछ यहीं रह जाना है। इंसान जिस चीज के पीछे भागता है वो सब एक दिन पीछे रह जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में क्या बनाया है? जब इंसान खुद से सवाल करता है तो वो बेदारी के करीब आ जाता है। अगर आज मेरा हिसाब हो जाए तो इंसान अक्सर दुनिया को देखता है मगर अपने अंदर को नहीं देखता। शायद अभी देर नहीं हुई। वापसी हमेशा मुमकिन होती है, बस कदम उठाने की देर होती है। मैं सब कुछ पाकर भी खाली क्यों हूँ? असल खला दुनिया में नहीं होता, वो इंसान के अंदर होता है। तो फिर असल जिंदगी क्या है? जिंदगी वक्त का एक मुख्तसर सा सफर है। हम सब भाग रहे हैं, लेकिन किस तरफ? वक्त गुजर रहा है और इंसान खुद को भूल रहा है। अगर आज नहीं बदला तो फिर कब? इंसान के पास हमेशा वक्त होता है, मगर यकीन नहीं होता। बेशक इंसान खसारे में है, ये एक हकीकत है जो हर दौर के इंसान के लिए है। सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहें और हक की नसीहत करते रहें और सब्र की नसीहत करते रहे।